কিন্তু আমরা কি দেখলাম, গত 2 দিন আগে অর্থাৎ 13 তারিখে সন্দীপ ঘোষ, যিনি প্রাক্তন অধ্যক্ষ আর.জি. কর মেডিকেল কলেজ এবং টালা থানার সেই সময়কার ওসি, এখন প্রাক্তন ওসি, নামটাও তো সম্ভবত অভিজিৎ মন্ডল, তারা জামিন পেয়ে গেলেন। আমি জামিন প্রসঙ্গে এসে 2-4টে কথা বলবো। তার আগে আমি আপনাদের বলি যে এত মহিলা ডাক্তার ছিলেন বা যারা ছিলেন, কেন নির্যাতিতা ওই তিলোত্তমার ওপরেই কেন আক্রমণটা নেমে আসলো, কারণটা কি? দেখুন, তার লড়াইটা ছিল এই যে অন্যায়, যে দুর্নীতি হচ্ছে, এগুলো বন্ধ করার। মেডিকেলের মধ্যে, ওই আর.জি. কর हॉस्पिटल मध्य सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, जो ओटी रूम है उसके अंदर वो जो डॉक्टर्स है जो संदीप घोष के साथ में रहते हैं, वो लोग उधर पिकनिक मनाने था, मतलब उधर पिकनिक करते थे, उसको उसका विरोध किया है। वहाँ पे जो मेडिसिन और जो सिस्टम है वो डे बाय डे खराब होते जा रहे थे। वो किया है तिलोत्तमा ने उसको प्रोटेस्ट किया है। उसका यही गलती है। प्रोटेस्ट किसी लिए क्यों किए हैं? तो हम लोगों के लिए किए हैं। जो हम लोग ट्रीटमेंट लेने जाते हैं वहां पे हम लोगों के साथ गलत होते हैं, हम लोगों के लिए वो प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोगों के लिए वो उसका जान भी चले गए। तो हम लोगों का काम होगा, जितना दिन तक तिलोत्तमा को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग खड़े रास्ते में खड़े रहेंगे, इंसाफ के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। अभी शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि वो हिंदू का रखवाला है, मतलब उसको प्रोटेस्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, बांग्लादेश का हिंदू को प्रोटेक्ट करेंगे, और देश का हिंदू को, सोदपुर का हिंदू जो है उसको इंसाफ ना मिलने के तक एक भी बात नहीं कर रहे। वो क्या बोल रहे शुभेंदु अधिकारी ने, বাংলাদেশের হিন্দুদেরকে বাঁচাতে হবে। আরে ভাই, আপনার বাড়ির পাশে সোদপুরের আমাদের তিলোত্তমার বিচার এখনো পেলো না কেন? 90 দিন হয়ে গেল, এখনো সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট কেন দিতে পারলো না? শুভেন্দু অধিকারীর মুখে একটা কথা শুনেছেন? ও আমার রাজ্যের হিন্দুকে সুরক্ষা দিতে পারছে না, আমার রাজ্যের হিন্দুকে ইনসাফ দিতে পারছে না, ও বিদেশের হিন্দুকে ইনসাফ দেবে না? শুধুমাত্র ভোটের জন্য চিৎকার করছে। এই তিলোত্তমার সাথে আমি ধর্মীয় রাজনীতি করতে পছন্দ করি না। তার আগে একটা কথা বলি, इंडियन सेकुलर फ्रंट मुसलमानদের দল নয়, হিন্দুদের দল নয়। इंडियन सेकुलर फ्रंट जिसके साथ नाइंसाफी हो रहा है उनका ही दल है, उनके पीछे खड़े होकर आवाज बुलंद करेगा। ये इंडियन सेकुलर फ्रंट है। जो मेरा बात हम जो कहना चाहते हैं, आप अगर देखोगे तो बीजेपी क्या बोल रहे हैं, बीजेपी क्या बोल रहे हैं, और हिंदू को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई एक धर्म को आदमी को आप प्रोटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। लेकिन क्या देख रहे हैं आप, अगर देखोगे तो তিলোত্তমা যিনি আছেন তার ধর্মীয় পরিচয় যদি আমরা দেখি কি হবে, সে তার মুসলিম নয়। তাহলে সিবিআই এর হাতে মামলা ছিল। 13 তারিখে প্রথমে অ্যারেস্ট হয়, 2 তারিখে সন্দীপ ঘোষ, 13 সেপ্টেম্বর 2 সেপ্টেম্বর অ্যারেস্ট হয় সন্দীপ ঘোষ, 13 সেপ্টেম্বর অ্যারেস্ট হচ্ছে আপনার অভিজিৎ মন্ডল এবং আবার সন্দীপ ঘোষ, দুজনই অ্যারেস্ট হয়েছেন দ্বিতীয়বার। 90 দিন হয়ে গেল যখন অ্যারেস্ট করেছিল সিবিআই, তখন প্রায় 12টা পয়েন্ট বলে উল্লেখ করেছিল যে এই কারণে এদেরকে অ্যারেস্ট করা হলো। সেখানে একটা বলেছে লার্জার कॉन्स्पिरेसी, खतरनाक कोई साजिश है इसमें, ये लोग किए हैं और पुलिस ने किया, और बहुत पॉइंट्स दिया था। तो उसके बाद अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट देना होते हैं। अभी बीएनएस हो गया, आईपीसी सीआरपीसी को उठा के बीएनएसएस हो गया अभी। तो बीएनएसएस के 187 सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 में वहां पे सरासर है कोई 10 साल के ऊपर किसी का सजा मिलेगा, ऐसा कोई सेक्शन आ जाएगा तो विद इन 19 डेज उसको चार्जशीट देना पड़ेगा। और बिलो 10 साल के नीचे कि ऐसा कोई सेक्शन आ गया तो उसके ऊपर होता है ना, किसी के ऊपर हो जाता है। तो अगर 10 साल के नीचे होगा तो 60 डेज का अंदर 60 दिन के
60 দিনের মধ্যে তাকে চার্জশিট লাগাতে হবে। আপনি বলুন, এটা যেগুলো করেছে 10 সালের বেশি, লাইফার হতে পারে, আরো কিছু হতে পারে, কিন্তু আমরা কি দেখলাম 90 দিন পার হয়ে গেল, সন্দীপ ঘোষ, অভিজিৎ মন্ডলের বিরুদ্ধে কোনো চার্জশিট দিল না। এটা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির কোনো কথা নাই। শুভেন্দু অধিকারী আর বিজেপির এখানে কেন কথা নাই? ওরা এখানে ভোটের ফায়দা নিতে পারবে না। শুধুমাত্র ওরা ধর্ম করে ভোটের ফায়দা নেওয়ার জন্য। আপনি বলুন, এই মাজারে আছেন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আছেন, তাদের বুকে হাত রেখে আমি জিজ্ঞাসা করছি, বলুন, আপনি হিন্দু, আপনি মুসলমান, আপনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ, 2014, 15, 16, 17, 12 হচ্ছে নোটবন্দির পরে ছোট ছোট যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা আছেন তারা এগিয়ে গিয়েছে না পিছিয়ে গিয়েছে? দেখলে দেখা যাবে তারা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। আর যারা পুঁজিপতি, শিল্পপতি, যাদের ওই আদানি, আম্বানি, মোদি, মমতার সাথে যাদের সুসম্পর্ক, তারা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। আর পিছিয়ে যাওয়াতে কিন্তু মুসলিমও আছে, দলিত আছে, আদিবাসীও আছে, হিন্দুও আছে। এদের নিয়ে এরা চর্চা করে না। এদেরকে শুধুমাত্র এদেরকে ধর্মীয় কাজে, ধর্মীয় উন্মাদনা দিয়ে ভোটটা নেওয়ার চেষ্টা করে। আজকে আমার এই বলার কারণ এটাই, আমি ভাবছিলাম অনেক যে কথা বলবো কি বলবো না, বিজেপির এই নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে। এটা বললে আবার কেমন ভাবে পাবলিক নেবে যে তিলোত্তমার তাহলে কি নওশাদ সিদ্দিকী ধর্ম দেখতে চাইছে? মোটেও নওশাদ সিদ্দিকী ধর্ম দেখে প্রতিবাদ করে না, প্রোটেস্ট করে না। পুরুলিয়ার অগরপুরে যখন আদিবাসী দলিতদের পড়ে তাদের জমি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছিল, তাদেরকে মারধর করেছিল, তখন নওশাদ সিদ্দিকী আইএসএফ কিন্তু তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। धर्म देखे ऐसे प्रोटेस्ट करे ना, कौन किस धर्म का है, कौन जाति का है, वो हम लोग का मतलब देखा तो कोनो प्रश्न आसे ना, हम लोग उसके पीछे खड़े होते हैं, उसके लिए आवाज उठाते हैं, जिसके साथ नाइंसाफी हो रहा है। जैसे हम लोग चला गया था चोपड़ा में, दिनाजपुर का चोपड़ा में, वहां पे आदिवासी समाज का 30 के ऊपर करीब 40 परिवार के साथ नाइंसाफी हुआ था। उन लोगों का घर को जला दिया गया था। वहां पे हम लोग चले गए थे, लगातार 15 दिन उन लोगों का हम लोग खाना पका के उन लोगों के खाने के बंदोबस्त किए थे। ऐसे यही काम करते हैं कि कोई धर्म का हो, कोई जाति का, उसको लेके हम लोग चर्चा नहीं करते। लेकिन अभी क्यों चर्चा कर रहे हैं? अभी चर्चा करने इसीलिए कर रहे हैं, बंगाल का जो हिंदू मुसलमान एक साथ भाईचारा के साथ रह रहे हैं हम सालों साल भर, लेकिन इसको खत्म करना चाहते हैं बीजेपी, और उसको प्रमोट कर रहे हैं टीएमसी वालों लोग। बोलते हैं हमको नौशाद सिद्दीकी, जब आप मुसलमान के मुद्दे पे बात उठाते हैं, जब बोलते हो प्रॉपर्टी तुम क्यों लेना चाहते हो, इसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा इस अमेंडमेंट को, तब बोलते हैं नौशाद सिद्दीकी बीजेपी का दलाल। हम जब बोलते हैं पिछड़ा हिंदू के बारे में, क्यों एसटी एससी कोटा में दूसरे कम्युनिटी चाहकर जॉब मिल रहा है, जब बोल रहे हैं कि क्यों एसटी एससी जो रिजर्वेशन है जो नौकरी के लिए, उस पोस्ट में नॉन एसटी एससी क्यों घुसाया जा रहा है, इसके बारे में जब हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो मुसलमान का पार्टी है। यही चर्चा चल रही है। आज क्यों हम बोल रहे हैं तिलोत्तमा का रिलीजियस क्या पहचान है, इसके बारे में क्यों बोल रहा है? इसीलिए बोल रहा है कि जो हम लोगों को धर्म दिखा के वोट मांगना चाहते हैं, उनको हम क्वेश्चन करना चाहते हैं।